Welcome dear student, we are going to start the slide. This is Yasraj sir, lecture language. Today we are going to discuss the third chapter, framing question. As you can see that the framing question is very important regarding your syllabus. Framing question has some specified categories and it is be classified into 6 categories. Before we are going ahead on the next slide, we are going to discuss that what is framing question. You know very well what is question. If there is something asking about in a sentence, then it is called the question. And the proper manner, the proper way, using the rules that we have formed the questions, that is called the framing question. Okay. For framing question skill, there are some very important requirement that are we have to understand what are question words, proper use of question words, master rule of framing questions, and types of question. Going to the next slide. As you can see on your screen, 6 type of question forms: yes no questions, WH questions, tag questions, subject object questions, WH question with proposition, negative question. Dear students, now you can see that 3 major types, which are also called 3 major rules. You can see there is a chart on your screen that is types of question, serial number, type, purpose, structure. As you can see, the first serial number, the first one is yes no questions. And what the purpose of yes no question? For eliciting information, inviting, asking permission, offering, requesting. The structure of the yes no question is auxiliary verb plus subject plus main verb. That's mean there is the beginning of the yes no question is with the auxiliary verb and then subject and then main verb. Dear students, for understanding this yes no question, we are just taking one example which is written on in the chart. He is an engineer. Just suppose that there is the sentence is in your examination paper like he is an engineer. How you can make it or how you can frame it in a question? It is very simple, students. You just invert the position of the auxiliary verb, that is also called the helping verb. Okay, auxiliary verb is also called the helping verb, like is, am, are, these all and etc. These all are the auxiliary verbs or helping verb. Okay, you can see in the first example, he is an engineer. The answer is, that is not the answer. Actually, we are going to frame it in a question, but here the question is he is an engineer. That means we have to make, we have to form, we have to frame a question. Okay, now is he an engineer? You can see very well that the position is inverted. The position of auxiliary verb is come on the first and the subject he is come after the auxiliary verb, as you can see in the structure. Okay,
Is he an engineer? Now, WH questions begin with किसके किसके साथ ये शुरू होते हैं? Dear students, as you know very well, WH question is directly related to the WH family. And what is WH family? A word which always asks something. Like which, कौन सा, what, क्या, who, कौन, where, कहाँ, when, कब, etc. अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं. क्वेश्चन वर्ड्स प्लस ऑक्सिलरी वर्ड प्लस सब्जेक्ट. डे स्टूडेंट्स, फ्रेमिंग क्वेश्चन बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान चैप्टर है. आपको ध्यान से ये समझना है कि इसमें क्या हो रहा है. जैसे कि यस नो क्वेश्चन में आपने देखा है कि ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब को हम पहले कर लेते हैं सब्जेक्ट के जगह पे, और सब्जेक्ट को ऑक्सिलरी वर्ब के जगह पे इन्वर्ट करके सिंपली हम क्वेश्चन फॉर्म कर देते हैं, फ्रेम कर देते हैं क्वेश्चन. उसी प्रकार WH क्वेश्चंस, जस्ट लाइक द WH क्वेश्चंस always begins with the WH words. Which, what, who, where, when, why, who, how, those. That's mean that particular question is start with the question word, then after auxiliary verb, then after subject. समझ में आ रहा है बच्चों? पहले क्वेश्चन वर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे. तब हमारा WH क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेमिंग हम कर पाएंगे. ओके, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं WH क्वेश्चन से रिलेटेड. आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, आई गो टू Delhi. नाउ वी हैव टू फ्रेम इट in a question. Where do you go to? Okay, you can see that just putting a WH family related word which asks question that where do you go to, कहां जा रहे हो, कहां के लिए जा रहे हो. Isn't it? It is very simple. We are just adding a WH family word, whatever it is decided on the situation of the demand of the sentence. आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा WH फैमिली का कौन सा ऐसा शब्द हम प्रयोग करें कि कहाँ प्रयोग करना है, कैसे, कौन सा चीज, वो आप जब एक्सरसाइजेस करेंगे, आप इसको समझेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा. Okay, next slide. Here you can see that the third is tag questions. Purpose of the tag questions are short questions asked to confirm the statement. Short question, छोटे questions के लिए tag questions का इस्तेमाल करते हैं. या हम इस चीज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि भाई ये कंफर्म करने के लिए, जैसे ये कथन सत्य है कि नहीं है. अगर आपको असमंजस या यू आर फीलिंग सम डाउट अबाउट द स्टेटमेंट, देन यू आर गोइंग टू कंफर्म इट. ओके, दैट्स व्हाई द टैग क्वेश्चन आर यूज्ड. अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम टैग क्वेश्चन का. ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस प्रोनाउन ऑफ द सब्जेक्ट. ओके, ही इज एन इंजीनियर. एक एग्जाम्पल है आपके स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं. इस चार्ट में मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ही इज एन इंजीनियर. ये एग्जाम्पल पहले स्लाइड में, पहले चार्ट पे भी था, जहां पे यस नो का आपको जवाब देना था. यस नो का जवाब देना था तो आपने क्या किया था, इज ही एन इंजीनियर, एक क्वेश्चन बना दिया इस पे. बस इसका क्या किया था आपने, ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट से अदला बदली किया था, उसकी पोजीशंस का आपका क्वेश्चन बन गया था. यहां पे कुछ अलग है बेटा. यहां पर हम
असमंजस की स्थिति में, कंफ्यूजन की स्थिति में कुछ पूछना चाहते हैं, क्या वो इंजीनियर है? इजंट ही? क्या वह इंजीनियर है? तो यहां पे हम पूरी बात नहीं पूछ रहे हैं कि इजंट ही द इंजीनियर, इजंट ही एन इंजीनियर, मैं पूरी बात नहीं पूछ रहा हूं। इजंट ही, क्या वो है? अब क्या वो है, यहां पर हम आस्क कर रहे हैं, वहां पे पूछ रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, क्या वो है? इसका मतलब पूरा क्या हुआ? क्या वो इंजीनियर है? अंडरस्टूड? गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। Dear student, you can see that there is some exercises. There is the examples of yes no questions. 5. First of all, you have to read it and then trying to solve it, trying to frame a question on each sentences. First of all, I would like to attend the party. I would like to attend the party. अब इसको हम कैसे फ्रेम करेंगे कि वह क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था, as I told you earlier slides, when we are going through the yes no question, when we are going through for the framing of yes no question, then we have to do that we just invert the position of the auxiliary verb and the subject. We just replace it. अब यहां पे आपको इतना समझ में आना चाहिए कि yes no questions जहां भी आते हैं, जब भी आ जाते हैं, तो आपको सिर्फ क्या करना है, उसका पोजीशन चेंज कर देना है। जैसे पहला एग्जांपल क्या है, आई वुड लाइक टू अटेंड द पार्टी। यहां पे क्या होगा, वुड आई लाइक टू अटेंड द पार्टी। सी इज हैप्पी, इज सी हैप्पी, ही प्लेस क्रिकेट। अब यहां पे थोड़ा सा चेंज होगा, डू और डज का यूज होगा, ही प्लेस क्रिकेट, यानी क्वेश्चन पूछना है, तो क्वेश्चन पूछना है तो यहां पे लिख देंगे हम, डज ही प्ले क्रिकेट? ही हैज रिजाइंड हिज जॉब, हैज ही रिजाइंड हिज जॉब। आगे देखिए स्लाइड्स में आपको इसी के सॉल्व एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। देखिए आप इसको नोट कर सकते हैं, आप अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको घर पे सॉल्व करिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। देयर आर सम फ्यू एग्जांपल्स on WH questions, that is subject questions. WH question, with dear students, that WH questions are also called subject questions. Why? Because WH questions are the questions who begins with the WH words, and that is also the subject. WH क्वेश्चन जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सब्जेक्ट क्वेश्चन क्यों कहते हैं? क्योंकि वह उन्हीं शब्दों से ही शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का, और वही आपका क्या होता है, विषय होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे आई विल सिक्योर फर्स्ट मार्क। अब यहां पे क्या बोल रहा है, मैं पहला मार्क, या पहला मार्क से क्या मतलब है, पहला स्थान, पहला मतलब फर्स्ट। सिक्योर का क्या मतलब है, मैं हासिल करूंगा। सिक्योर का मतलब होता है किसी चीज को पा लेना, सिक्योर कर देना, संरक्षित कर देना। ठीक है, आई विल सिक्योर फर्स्ट मार्क, मैं पहला स्थान पा लूंगा, मैं पहला स्थान हासिल करूंगा, कब्जा करूंगा, उसको सिक्योर कर दूंगा। अब इसको हम सब्जेक्ट क्वेश्चन, WH क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? एक WH फैमिली का कोई भी शब्द जो इस चीज को क्लैरिफाई करे कि इसका फ्रेमिंग क्वेश्चन कैसे बन सकता है। जैसे अब इसको आप कह सकते हैं, आई हटा दीजिए। अब यहां पे क्या है बेटा कि आपको कुछ वर्ड्स रिमूव भी करने पड़ेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। यहां पे ये आंसर है एक्चुअली, जो आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाने के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक ही ऐसा है जहां पे आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है।
तो आपके सामने आंसर है, आपको एज ए आंसर उनका क्वेश्चन बताना है, इजंट इट? तो आई विल सिक्योर फर्स्ट मार्क, इसको हम कह सकते हैं हु विल सिक्योर फर्स्ट मार्क। जिस प्रकार से सेकंड आपका है ही हैज बीन रीडिंग अ नॉवेल, तो यहां पे पूछेंगे भाई कौन नॉवेल पढ़ रहा था? इसी तरह तो हम क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे यहां पे आई विल सिक्योर फर्स्ट मार्क, कौन सिक्योर किया फर्स्ट, कौन करेगा भाई सिक्योर फर्स्ट मार्क? इस वजह से हम क्या यहां पे हु लगा रहे हैं। यहां लगभग 4 ऐसे एग्जांपल जिसमें हु का प्रयोग होगा, लेकिन फिफ्थ वाला थोड़ा अलग है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, उसके पहले हम जैसे आई लिव इन चेन्नई, मैं कहां रहता हूं? चेन्नई में रहता हूं, लेकिन इसका काफी कुछ शब्द रिप्लेस हो जाएंगे और एक बहुत ही आसान तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेयर डू यू लिव? ओके डियर स्टूडेंट्स, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड विद द सॉल्व एग्जांपल्स। आप इसको लिख जरूर ले बेटा, स्क्रीनशॉट ले ले, या किस तरह भी नोट्स जरूर बनाए आप। जैसे आप देख रहे हैं, पहला हु विल सिक्योर फर्स्ट मार्क, हु हैज बीन रीडिंग अ नॉवेल, हु रीड बुक्स, who saw a snake gliding by, where do you live? Okay, इसको नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा देर इसको स्टैंड बाय पे रख रहा हूं कि आप इसको नोट कर सके। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आप नोट कर चुके होंगे, इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करता हूं। Here you can see that there is an example which is related to the tag questions. First example is, I would like to attend the party. There are most of the examples which are taken from the WH examples and the yes no examples. I am using the same examples because when there is used of the same example, you are not confused in your exams that if this particular yes no or tag questions or the WH question or the tag question, all the 3 major types of framing questions are come in the front of you in your exam paper, question paper, then you are not going to be confused. You have to understand that what you will do at that time when you are confronting your questions. Whatever the same sentence is in the WH or is in the yes no question or in the tag questions. That's why इस वजह से मैंने एग्जाम्पल्स लगभग कई बार रिपीट करने की कोशिश किया है कि आप कंफ्यूज ना हो। अगर yes no क्वेश्चन आता है, WH क्वेश्चन आता है या टैग क्वेश्चन आता है, सेम एग्जांपल्स को लेके आप समझ जाएंगे किसमें क्या करना है, किसमें हमको इन्वर्ट करना है पोजीशन, किसमें हमको कुछ रिप्लेस करके उसके स्थान पे WH वर्ड्स लाने हैं, और किसमें हमको शॉर्ट क्वेश्चन टैग क्वेश्चन के थ्रू बनाना है। ठीक है, तो बेटा इसको आप लोग नोट करते चलेंगे। मैं बहुत टाइम ले रहा हूं इसी वजह से कि आप समझ सकें, नोट कर सकें। कृपया आप भी मेहनत करें, मेहनत करेंगे तभी आप सफल होंगे, ये मैं बार बार कहता हूं। इस चीज पे आप गौर करें। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। अब देखिए, जो आपका क्वेश्चन था इसमें आपको क्या करना है, मैंने रफ वर्क करके लिखा है क्योंकि मैं आपको एग्जांपल्स का सॉल्व भी देते जा रहा हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन आप इसको देखने के बाद इसको प्रैक्टिस जब करेंगे तो आप सिर्फ क्वेश्चन लिखिए, इसका आंसर मत लिखिए। जितना आप क्वेश्चन इसका करेंगे उतना आप बहुत इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। जैसे पहला हमारा क्या था, आई वुड लाइक टू अटेंड द पार्टी। अब यहां पर आप देखिए आपको क्या फाइंड करना है, कैसे आप जानेंगे कैसे टैग क्वेश्चन हम
फ्रेम करेंगे। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पहले हम क्या खोजेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, आई वुड लाइक टू अटेंड द पार्टी। ओके, आई वुड लाइक टू अटेंड द पार्टी। अब यहां पर आप क्या फाइंड कर रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्लाइड में आपको फाइंड करना होगा हेल्पिंग वर्ब। अब ये दो चीज जब आप पहचानना सीख जाएंगे, when you are able to identify the auxiliary verb and the main verb in a sentence, then it's very easy for you that you are very comfortably make or frame a question, a tag question. Understood? इसको ध्यान से देख लें, नोट कर लें कि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब हम आइडेंटिफाई करेंगे। आई वुड लाइक टू अटेंड द पार्टी, वुड लाइक, से इज हैप्पी, इज, he plays cricket, plays, he has resigned his job, has resigned, shall have, will secure. I already highlight the auxiliary verb and main verb. Okay, you well understand that which one are the auxiliary verb and the main verb. Move to the next slide. Now here आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब। देखिए मैंने रफ वर्क एक आपको नोटेशन वहां पे लिखा हूं छोटा सा कि ये रफ वर्क है। रफ वर्क क्यों है, मैंने इसको स्लाइड्स में क्यों यूज किया है, क्योंकि यह मैं बता रहा हूं कि कैसे आप टैग क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक है, एक बार आपको क्या करना था, आपको दोनों हेल्पिंग वर्ब दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब को आइडेंटिफाई करना था। अब यहां पे आप क्या कर रहे हैं, क्या आइडेंटिफाइंग कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब। मतलब आप क्लियरली ये समझ जाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, मेन ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है। किसी किसी में दोनों में कॉमन रहता है, जैसे सी इज हैप्पी में ही इज ही आपका वर्ब है, मेन वर्ब है, चाहे आप हेल्पिंग वर्ब जो भी आप समझ लें। तो इस प्रकार से आप देखिए इसमें लाइक, इज, प्ले, रिजाइंड, हैव, सिक्योर, बीन, जो डार्क येलो समथिंग कलर है उससे हाईलाइट हुआ है, और डच जो है ब्लू कलर से हाईलाइटेड है। सॉरी, ये जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है वो आपके मेन वर्ब है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। अब यहां पे देखिए इन दो चीजों को जब आप जान लेंगे, क्या क्या जान लेंगे, when you are capable to identify the auxiliary verb and the main verb, then you are very easily framing the tag question. You are capable in a very simple way that you are capable to frame the question, the tag questions. Okay, जैसा बच्चों आप लोग देखे थे कि आई वुड लाइक टू अटेंड द पार्टी, एक सेंटेंस था, वहां पे वुड लाइक को हाईलाइट किया गया था कि कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है, कौन सा मेन वर्ब है, इन सारी चीजों को हाईलाइट किया गया था इन 10 एग्जांपल्स में। अब यहां पर आई वुड लाइक टू अटेंड द पार्टी, मान लीजिए एक सेंटेंस, एक वाक्य है कि मैं पार्टी को अटेंड करना चाहता हूं, यानी उस पार्टी में सम्मिलित होना चाहता हूं। अब भाई कहीं चर्चा चल रही है, माताजी पिताजी बात कर रहे हैं कि हम लोग को तो कल एक पार्टी में जाना है, बच्चे का क्वेश्चन पेपर चल रहा है। एक एग्जांपल, एक सिनेरियो लेते हैं कि बच्चे का एक पेपर चल रहा है, लेकिन भाई उसको पार्टी में जाने की इच्छा है, ही वांट्स टू गो इन द पार्टी। तो वह एक सिंपल सा सेंटेंस क्या लगता है कि आई वुड लाइक टू अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी अटेंड करना पसंद करूंगा, मुझे जाना वहां पर अटेंड करना है, मुझे अच्छा लगेगा, मैं जाना चाहूंगा। ठीक है, अब यहां पे वो क्या कहेगा, यहां पे उसको दुविधा है, वो कंफर्म करेगा, यहां पे वह क्वेश्चन आस्किंग करेगा, वुडंट आई, क्या मैं कर सकता हूं। अब यहां पे पूरे सेंटेंस का टैग क्वेश्चन क्या बना, वुडंट आई। नॉट का
हम शॉर्ट फॉर्म एपिस्ट्रॉफी एस लगा के वुडंट बना लेते हैं। वुड नॉट है जिसको हम एपिस्ट्रॉफी एस लगा के इसको सिंक्रोनाइज वे में लिखते हैं वुडंट। ठीक है, वुडंट आई। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है वुडंट है, क्या मैं जा सकता हूं? क्या मैं, अब यहां पे टैग क्वेश्चन आपको पहले ही मैंने बता रखा है कि टैग क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है बच्चों, टैग क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। तो इस पूरे वाक्य को हम शॉर्टली कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम टैग क्वेश्चन कहते हैं। जैसे वुडंट आई सी इज हैप्पी, क्या वह खुश है? सॉरी, सी इज हैप्पी, वह खुश है। अब यहां पे संशय होगा, अगर किसी को किसी के बारे में बात करें, भाई सी इज हैप्पी, वो खुश है, तो वह कंफर्म कैसे करेगा? इजंट सी, क्या वह है खुश है कि नहीं है कि दुविधा में शॉर्ट क्वेश्चन टैग क्वेश्चन हम करते हैं। जब हमारा क्वेश्चन क्या होता है कि क्या है क्या नहीं है, ये दोनों चीज को हम डिनोट करते हैं टैग क्वेश्चन से। ओके डियर स्टूडेंट्स, थर्ड है आपका ही डज प्ले क्रिकेट, डजंट ही। इसी प्रकार से आपके 10 एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसका एक्सरसाइज करें, इसको समझें। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट क्वेश्चन टैग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, यस नो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। यहां पे देखिए बेटा, फ्रेमिंग क्वेश्चंस के एग्जांपल्स लिखे गए हैं। यहां पे कोई स्पेसिफाइड मैंने टैग ऊपर नहीं दिया है कि किस प्रकार का है ये क्वेश्चन, कौन से कैटेगरी का है। यहां पे आपको ये देखना है कि भाई ये किस प्रकार से तीनों फॉर्म में बन सकता है एक ही क्वेश्चन। जैसे मैंने कई बार रिपीट किया था कई एग्जांपल्स, उसी प्रकार से यहां पे आपको क्लियरली बता रहा हूं कि किसमें कौन सा किस प्रकार से बनेगा। जैसे एक सिंपल आपका सेंटेंस है, आई वुड लाइक टू अटेंड द पार्टी। अब इसको टैग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, वुडंट आई। ठीक है, वुड के साथ नॉट जोड़ के, और आई चूंकि मैं पूछना चाह रहा हूं, मैं जाना चाह रहा हूं पार्टी में, यहां पे सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं। तो मैं पार्टी में जाना चाह रहा हूं, मुझे संशय है, मैं इस चीज को कंफर्म कर रहा हूं, तो क्या होगा, वुडंट आई। यहां पे नॉट लग रहा है, वुड क्वेश्चन कर रहा है, क्या मैं जा सकता हूं? नहीं जा सकता हूं। बोलता हूं अरे भाई जरा 500 रुपए देना, दे दोगे? दोगे? क्या पूछोगे? यही पूछोगे ना, दे सकते हो? वुडंट यू, नहीं दे सकते हो। तो ये सारी चीजें जब आप कोई चीज शॉर्ट में क्वेश्चन करते हैं, उसी को आपको टैग क्वेश्चन करते हैं। अब डब्ल्यूएच क्वेश्चन देख लेते हैं, भाई डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसे होगा। अब यहां पे सिंपल एक सेंटेंस आपके सामने ऑलरेडी है, आई वुड लाइक टू अटेंड द पार्टी। डब्ल्यूएच क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं, हु वुड लाइक टू अटेंड द पार्टी। भाई यहां पे क्वेश्चन कर दिया, कौन जाना चाहता है, कौन पार्टी अटेंड करना चाहता है। सिंपल इस सेंटेंस को आई हटा के, सब्जेक्ट हटा के, उसका सब्जेक्ट हटा के एक कौन सा डब्ल्यूएच फैमिली का बंदा, एक डब्ल्यूएच फैमिली का बंदा, एक वर्ड आ जाता है हु। ठीक है, और जो उसका पहले का आई होता है, सब्जेक्ट होता है, उसको रिप्लेस करके वो जो है क्वेश्चन आस्क करता है कि हु वुड लाइक टू अटेंड द पार्टी, कौन अटेंड करना चाहता है पार्टी। ठीक है, अब इसी को यस और नो में आप देख सकते हैं कैसे होगा, वुड यू लाइक टू अटेंड द पार्टी। यहां पे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या तुम पार्टी अटेंड करना चाहोगे, क्या तुम पार्टी अटेंड करना पसंद करोगे। तो यहां पे बेटा देखिए आप लोग कि यू कैन सी वेरी क्लियरली दैट a sentence, a single sentence which are used in the 3 types of framing question, tag question, WH questions and yes no question. Okay, move to the next slide. Framing question review, he does play cricket, he has resigned his job. ये एक प्रकार का रिव्यू है जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। से इज हैप्पी, अब इसको हम तीनों फॉर्म में देखते हैं, टैग क्वेश्चन में, डब्ल्यूएच क्वेश्चन में, यस नो क्वेश्चन में। इजंट सी, से इज हैप्पी को जब हम टैग क्वेश्चन में करेंगे तो इजंट सी, डब्ल्यूएच क्वेश्चन में करेंगे हु इज हैप्पी। ठीक है, अब यहां पूछेंगे कौन हैप्पी है, भाई कौन खुश है। देखिए यहाँ पे एक कोई बच्ची है, कोई महिला है, कोई लड़की है, कोई किसी की बात हम कर रहे हैं।
फेमिनाइन यहाँ पे सब्जेक्ट यूज किया गया है, सी इज हैप्पी, वह खुश है। अब यहाँ पे जब हमें कंफर्म करना है टैग क्वेश्चन का हम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, इजंट सी, क्या वो खुश है। जब हम WH क्वेश्चन का प्रयोग करेंगे, जब हम इसको WH क्वेश्चन के थ्रू फ्रेम करेंगे इस सेंटेंस को, तो क्या कहेंगे, कौन खुश है, वो इज हैप्पी। अब यहां पे हम यस नो क्वेश्चन जब हम पुट करेंगे, फ्रेम करेंगे, तो क्या कहेंगे, इज सी हैप्पी, क्या वह खुश है। तो इज सी हैप्पी का आंसर क्या हो जाएगा, सी इज हैप्पी। अगर कायदे से अगर आपसे कोई पूछे क्या वो खुश है, तो इसका आंसर आप क्या बोलोगे, हाँ वो खुश है, सी इज हैप्पी, यस सी इज हैप्पी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगेन a same sentence is used for 3 of the categories of the framing question. As you can see that he plays cricket, there is the sentence and it is used through tag question, that it doesn't he, and then after WH question, who plays cricket, and then after yes no question, does he play cricket. In all of the 3 sentences you can see that how we make the tag question, how we make the WH question, and how we make yes no questions. Move to the next slide. Again, a single sentence which is used in all 3 categories of the framing question. He has resigned his job. बेटा यहां पे मैं बार बार एक एक सेंटेंस उठा के तीनों फॉर्म में आपको समझा रहा हूं कि आप इसको बहुत इजीली समझ लें। फ्रेमिंग क्वेश्चन इज नॉट द बिग थिंग, बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट टॉपिक है, आप इसको बड़े अच्छे से समझ लें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई दुविधा, कोई संशय, कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। ही हैड रिजाइन्ड हिज जॉब, उसने अपनी जॉब को क्या किया, रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया, अपने जॉब से इस्तीफा दे दिया। अब टैग क्वेश्चन में मान लीजिए कोई उसका कलीग है, एक सिनेरियो लेते हैं कि मंजेश नाम का एक एम्प्लॉय है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में, उसको कहीं और जॉब ऑफर होता है, या क्या उसका पर्सनल कोई रीजन है, वो क्या करता है, जॉब को छोड़ देता है, रिजाइन दे देता है, इस्तीफा देता है। अब इसके 3 प्रकार के हम क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, 3 प्रकार से। टैग क्वेश्चन क्या होगा, हैजंट ही, यहां पे हैज लग रहा है, हैज के साथ नॉट लग रहा है। आप जानते हैं कि सिंगुलर के साथ हैज लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है। तो आप पूछ रहा है हैजंट ही, क्या उसने छोड़ दिया। अब यहां पे नहीं और हां दोनों की बात होती है। अब उसका कोई कलीग है, वो पूछ रहा है हैजंट ही, क्या उसने छोड़ा या नहीं छोड़ा, वो कंफर्म कर रहा है। WH क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अब मान लीजिए कोई अननोन बंदा आया, उसको पता चला रे भाई ऑफिस में किसी ने रिजाइन दे दिया है, तो वो कैसे पूछेगा, हु हैज रिजाइन्ड हिज जॉब। अरे भाई किसने अपनी जॉब छोड़ दी, किसने अपना जॉब छोड़ दिया, भाई कौन रिजाइन दे गया। ठीक है, अब इसी चीज को अगर हम यस नो क्वेश्चन में फ्रेम करते हैं तो कैसे बोलेंगे, भाई फला है, उसको हम फला के बारे में हम कैसे पूछेंगे, जिसने जॉब छोड़ा उसको हम कैसे पूछेंगे, हैज ही रिजाइन्ड हिज जॉब, क्या उसने अपनी जॉब से इस्तीफा दे दिया। अब यहां पे आंसर होगा यस ही हैज रिजाइन्ड हिज जॉब, isn't it? I hope you all understand it very well. It is very simple, dear students. I am trying my level best that I give you through online classes proper knowledge about the topics. Okay, move to the next slide. We shall have lunch in this hotel. एक सिंपल क्वेश्चन, एक सेंटेंस लिया गया है जिसको टैग क्वेश्चन में हम कैसे कहेंगे,
शैनंट वी, ये आपका टैग क्वेश्चन हो जाएगा। WH क्वेश्चन में हम कैसे कहेंगे, व्हाट शैल वी हैव इन दिस होटल, एंड देन यस नो क्वेश्चन में हम कैसे कहेंगे, शैल वी हैव लंच इन दिस होटल। अब यहां पर हम लोग, कुछ लोग हैं जो होटल में लंच करने के बारे में बात कर रहे हैं, वी शैल हैव लंच इन दिस होटल। इसको टैग क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन में हम फ्रेम कर रहे हैं। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई विल सिक्योर फर्स्ट मार्क, मैं पहला पोजीशन, पहला स्थान लाऊंगा, यहां पे बात हो रही है। टैग क्वेश्चन में वुडंट आई, WH में हु विल सिक्योर फर्स्ट मार्क, यस नो क्वेश्चन will I secure first mark. Move to the next slide. He has been reading a novel. There is the sentence, he has been reading a novel. The tag question frame like this, hasn't he? WH question frame like this, who has been reading a novel? And yes no question a frame like this, has he been reading a novel? Okay, move to the next slide. You can understand it very well that all three categories, how we are frame the question through all three categories. Okay, कैसे क्या करना है मैं शुरू के स्लाइड से आपको समझाते आ रहा हूं, बस उसी चीज को आप ध्यान देंगे कि इसमें क्या करना है, कि इसमें हमें शॉर्ट में हमको क्या करना है, हमें WH क्वेश्चन में क्या करना है, यस नो क्वेश्चन में क्या करना है। नेक्स्ट स्लाइड। मैंने आपको बहुत से एग्जाम्पल दे दिए, इतने से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है, कोई आपको क्वेश्चन रह जाता है, तो आप हमें पूछ सकते हैं। विक्टर रीड्स बुक, टैग क्वेश्चन डिडंट ही, WH क्वेश्चन हु रीड बुक्स, भाई विक्टर बुक पढ़ रहा है, ठीक, विक्टर ने बुक पढ़ा, डिडंट ही उसने पढ़ा, वो रीड बुक किसने पढ़ा, किसने बुक पढ़ा, पुस्तक किसने पढ़ा। ठीक है, यस नो क्वेश्चन डिड विक्टर रीड बुक्स, क्या विक्टर ने बुक पढ़ा। एकदम सिंपल है बेटा, आपको टैग क्वेश्चन में सॉर्ट करना है, WH क्वेश्चन में आपको WH फैमिली से कोई वर्ड लेके सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हुए पूछना है, यानी जो ऑलरेडी सब्जेक्ट है उसको हमें क्या करना है, WH क्वेश्चन में रिप्लेस कर देना है। ठीक है, यस नो क्वेश्चन में आपको ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट से रिप्लेसमेंट करके क्वेश्चन बनाना है। बहुत से आपके यस नो क्वेश्चन में डिड और डू का प्रयोग होगा, जहां पर आप सब्जेक्ट को डिड और डू से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, जैसे आपके कम्युनिकेशन स्किल 2 के बुक में भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप देख सकते हैं। यू स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच, डू यू स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच, यहाँ पे पूछने का कार्य कर रहा है, लाइक ए अफर्मेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, वहां पे क्या इस्तेमाल करते हैं, डू। ठीक है, किसके, पूरे सेंटेंस के स्टार्टिंग में डू या डिड का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डू और डिड का प्रयोग देखिए, आपको विक्टर रीड्स बुक में क्या कर रहा है, इसनो क्वेश्चन में, कि क्या उसने बुक पढ़ा था। ठीक है, डिड कह रहा है, यानी क्या उसने बुक पढ़ा था। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सी सा स्नेक ग्लाइडिंग बाय, उसने सांप को रेंगते हुए देखा। ग्लाइडिंग मोस्टली यूज होता है हवा में, ग्लाइड करना यानी तैरना, हवा में तैरने को ग्लाइडिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे सांप के लिए यूज हो रहा है, वो ग्लाइड करते हैं, चूंकि जिगजैग मोशन में चलते हैं, जस्ट लाइक ए ग्लाइडिंग, जिनको हम लोग आम भाषा में, अपनी हिंदी भाषा में रेंगना कहते हैं। तो इसने ग्लाइडिंग कर रहा था, रेंग रहा था। ठीक है, तो इसको टैग क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, डिडंट सी। यहां पे इसने को, जिस लड़की ने देखा, जिस महिला या जिस गर्ल ने देखा, उसको क्या पूछा, डिडंट सी, क्या उसने देखा। अब यहां पे क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट कर देते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड बस हम
हाँ या ना से रिलेटेड कोई वर्ड जोड़ते हैं, डिडंट, डजंट, वुडंट, कुडंट, साइलेंट, इस तरह के वर्ड यूज करके हम क्वेश्चन करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसी प्रकार डब्ल्यूएच क्वेश्चन में व्हाट डिड सी सी ग्लाइडिंग बाय, क्या उसने तैरते हुए, क्या उसने रेंगते हुए देखा। यस नो क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, डिड सी ए स्नेक ग्लाइडिंग बाय, क्या उसने देखा सांप को ग्लाइड करते हुए। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। I live in Chennai. Tag question, don't I? WH question, where do you live? Yes no question, do you live in Chennai? आप उसी प्रकार से इसमें भी देख रहे हैं कि टैग क्वेश्चन में सिंपल करते हुए डोंट आई लिव इन चेन्नई, भाई मैं चेन्नई में रहता हूं, क्या मैं नहीं रहता हूं, डोंट आई। WH क्वेश्चन, वेयर डू यू लिव, आई लिव इन चेन्नई। अब कोई क्वेश्चन पूछ दे भाई वेयर डू यू लिव, तो आप क्या बोलोगे, जहां पे आप रहते हो वहां का नाम बोलोगे। जैसे कि यहाँ पे आई लिव इन चेन्नई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, वेयर डू यू लिव का आई लिव इन चेन्नई। तो यानी इसको हम फ्रेम क्वेश्चन कैसे करेंगे डब्ल्यूएच क्वेश्चन में, जब आई को हम रिप्लेस कर देंगे और एक क्वेश्चन पूछेंगे वेयर डू यू। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स जुड़ रहे हैं क्योंकि ये बात को क्लियर करने, भाई आई है तो आई का प्रोस्पेक्टिव केस क्या बनेगा, यू, वेयर डू यू लिव। और यस नो क्वेश्चन क्या बनेगा, डू यू लिव इन चेन्नई, क्या तुम चेन्नई में रहते हो। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। बच्चों यहां पे आप कुछ ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब देख सकते हैं। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एक ही है, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, कोई अलग चीज नहीं है ये। ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स आर द सेम। व्हाट आर दे, एम, इज, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड। am, is, are, was, were, do, does, did। ओके, इसको आप नोट कर लेंगे। जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से एक ही क्वेश्चन को, एक ही सेंटेंस को तीनों कैटेगरीज में हम लोग यूज कर रहे हैं, उस प्रकार से आप भी यूज करें, उस प्रकार से आप उस पर वर्क करें, एक्सरसाइज करें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं ये आशा करता हूं, आई जस्ट होप टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको इस स्लाइड्स के थ्रू, इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू बहुत आसानी से समझ में आया होगा कि क्या है फ्रेमिंग क्वेश्चन। अब आपके कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिसे आप याद कर लें, जिस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब थे जो आपको हमेशा फ्रेमिंग क्वेश्चन या और भी कई सेंटेंसेज में आपके ग्रामेटिकल पार्ट्स को क्लियर आउट करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कंफर्टेबली आपको काम आएंगे। जैसे विल, would, shall, should, may, might, can, could, need, ought to, dare to, must. These all are the modal auxiliary verbs. Okay, dear students, I hope you all are capable to frame a question through all three categories. The yes no questions, through WH question and tag questions. Do the exercise, don't waste your time, keep studying, keep smiling. Okay, thank you.